Hello, good morning, students, and welcome back again in our online lecture. Myself, Vijay Sir, I am from Goregaon Municipal Secondary School, and today I'm going to teach you the lesson The Fall of Troy. The Fall of Troy is a very beautiful and interesting story. The story is divided into two parts, and I know the first part of the story you must have learned. So today I will teach you about the second part of this story. In the first part, you learn that about the Troy city, means the Troy is a beautiful and a proud city. It is very rich for trading. But the prince of Troy, named Paris, he pursued the wife of Greek king Menelaus. Her name was Helen. He eloped her and brought her to the Troy. So the Greek kings were very angry on Paris. They wanted to take revenge. So they laid aside to the Troy city. The sign was for 10 years. Both the cities fight against each other for last 10 years, but no one could win. So the Trojans were tired, as well as the Greek soldier also tired. So now I'm going to share the screen with you. So please focus on the screen. Now we are going to learn the second part of the story. In the story, we will learn today how the Greek owned the Troy and what had happened with Trojans, what they do with Trojans people. We will learn in the second part deeply. So please focus on the screen and try to understand the meaning of the difficult words as well as the story. So this is a second part of the story, The Fall of Troy. फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हेलन को, मतलब जो ग्रीक राजा की रानी थी, उसे ट्रॉय के प्रिंस जिनका नाम पेरिस था वह उन्हें भगा के ले गए थे अपने राज्यों में। तो जिसके चलते सभी ग्रीक राजाओं ने उनके खिलाफ जंग छेड़ी थी जो पिछले 10 सालों से चल रही थी। अभी सेकंड पार्ट में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से ग्रीक राजाओं ने ट्रॉय वासियों को सबक सिखाया। देखिए, at last the Troy was taken not by force but by a trick. It was the cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. The first para, at last मतलब अंत में, the Troy was taken.
ये जो ट्रॉय सिटी थी उसे जीत लिया गया। एट लास्ट द ट्रॉय वाज टेकन, मतलब उसे जीत लिया गया, नॉट बाय फोर्स बट बाय ट्रिक। मतलब जैसे हम बोलते कि बल से नहीं बल्कि छल से, इस तरीके का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। नॉट बाय फोर्स बट बाय अ ट्रिक। ट्रॉय को जीता गया, लेकिन कैसे जीता गया? बल के द्वारा नहीं बल्कि छल के द्वारा। दे मेड अ प्लान, उन्होंने एक प्लान बनाया, ट्रिक बनाई, योजना बनाई। इट वाज द कनिंग ओडेसियस हु थॉट ऑफ अ प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री। वह कनिंग ओडेसियस था। कनिंग, कनिंग मतलब धूर्त, जैसे हम चालाक कहते हैं। ओडेसियस ने एक प्लान बनाया, who thought of a plan to obtain the victory, कि ट्रॉय को हम बल से तो नहीं जीत रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं, तो कुछ तो होगा जैसे हम उन्हें जीत सके। तो उन्होंने कुछ अलग से प्लान बनाया। What was the plan? We will learn in second paragraph. He said, "Let us build a great wooden house." So Odysseus ordered his leaders. He said, "Let us build a great wooden house." उन्होंने कहा कि चलो एक बहुत ही बड़ा वुडन हाउस, मतलब लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं। He said, किसने कहा? Odysseus says, "Let us build a great wooden house, big enough to hold man inside it." Big enough, इतना बिग होना चाहिए, to hold man inside it, कि वह अपने अंदर कुछ लोगों को समा सके, उसके अंदर हम छिप सके, इतना बड़ा हाउस हमें बनाना है। And let some of our best fighters hide in the house. और उसमें हम क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाएंगे जिसमें हमारे कुछ आदमी सैनिक छिप सके, और उसमें कुछ हमारे बेस्ट फाइटर्स, मतलब जो बहुत अच्छे हैं लड़ने में, उन्हें हम उस घोड़े के अंदर छिपा देंगे। Then let us burn our tents and pretend to sail away in our ships. Then उसके बाद हम क्या करेंगे? Let us burn our tents, हम अपने टेंट्स को जला देंगे। And pretend to sail away in our ships, और pretend करेंगे। pretend करना मतलब बहाना करना, नाटक करना। We will pretend to sail away. Sail away मतलब रवाना हो जाना, घर के लिए निकल जाना, in our ships, और इस तरीके का बहाना करेंगे कि हम अपने देश वापस चले गए हैं। हम अपने टेंट्स को जला देंगे और अपने अपने शिप लेके हम अपने देश के लिए रवाना होने का नाटक करेंगे। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे, इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे, हम अपने देश वापस नहीं जाएंगे। इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट, हम उसी रात वापस आएंगे। व्हेन द ट्रोजन्स आर अस्लीप, जिस समय ट्रॉय के निवासी, जैसे वी आर इंडियन, we live in India so we are Indian, they live in a Troy so they are Trojans, इंडिया के इंडियन, ट्रॉय के ट्रोजन्स। तो जब ट्रोजन्स, ट्रॉय के निवासी जब नींद में रहेंगे, जब सोए रहेंगे, एट दैट टाइम वी विल रिटर्न विथ आवर शिप्स, वी विल अटैक द सिटी एंड बर्न एंड किल। और हम उस समय क्या करेंगे? वी विल अटैक द सिटी, हम उस सिटी पर, उस शहर पर जो पिछले 10 सालों से जिसे हम काबिज नहीं कर पा रहे हैं, वी आर फेल टू विन, उस सिटी को हम रातों रात खत्म कर देंगे। बर्न एंड किल, सिटी को जला देंगे, वहां के जो राजमहल होंगे उन्हें जला देंगे, और वहां के सैनिकों को, राजाओं को, सबको मार देंगे। इट वाज अ प्लान, इस तरीके से एक प्लान बनाया। The plan was made by cunning Odysseus. Odysseus के द्वारा यह प्लान बना कि हमें किस तरीके से ट्रॉय को अभी जीतना है, और जीतने के लिए हमें क्या करना है। The Greek leaders decide to follow the advice of the wise Odysseus. The Greek leaders decide to follow. So the leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. ओडेसियस ने जो ऑर्डर दिया उसे वहां के लीडर ने, ग्रीक लीडरों ने फॉलो किया। सो अ ग्रेट हाउस ऑफ वुड वाज मेड बाय अ स्किलफुल इंजीनियर, और प्लान के तहत उन्होंने एक बहुत बड़ा हाउस,
एक स्किलफुल इंजीनियर मतलब जिससे बहुत नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन, दैट्स कॉल्ड स्किलफुल। एक इंजीनियर के द्वारा एक वुडन हॉर्स जो कि बहुत बड़ा था बनाया गया, एंड द ग्रेटेस्ट हीरोज Menelaus, Odysseus himself and others entered it according to plan. Some great leaders, great heroes like Menelaus, Odysseus himself and others entered it। और कुछ महान हीरोज ने, जैसे ये हिस्टोरिकल स्टोरी है तो इसमें हीरोज तो है ही। मेनालियस जिनकी वाइफ को भगाया गया था पेरिस के द्वारा, वो खुद, ओडेसियस जिन्होंने प्लान बनाया था, और कुछ ऐसे महान हीरो थे उस घोड़े के अंदर छिप गए जिसे एक स्किलफुल इंजीनियर के द्वारा बनाया गया। द लास्ट मैन टू गो इन द बीइंग द आर्किटेक्ट हिमसेल्फ हु न्यू द सीक्रेट ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग द एंट्रेंस। और लास्ट व्यक्ति जिसने उस घोड़े के अंदर एंटर किया, he was the architect himself, means he was a engineer, जिसके द्वारा यह हॉर्स, वुडन हॉर्स बनाया गया था, उनको भी मतलब उन्होंने भी उस घोड़े के अंदर एंटर किया। बिकॉज उन्होंने क्यों किया? बिकॉज he know the secret of opening and shutting the entrance। घोड़े का जो द्वार है वो कहाँ से खुलता है, कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। He was the only person who know the secret of opening and shutting the entrance, क्योंकि वही एक व्यक्ति थे जो उस राज को जानते थे, इसलिए उनका उस घोड़े के अंदर प्रवेश करना बहुत जरूरी था। That evening, the Greeks burned their tents and sailed away in their ships। देखिए, that evening, जिस दिन प्लान बना उसी दिन, दैट इवनिंग, शाम को, द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट्स, उन्होंने, ग्रीक वासियों ने अपने टेंट्स को जला दिया, बर्न करना, जला देना, एंड सेल अवे इन देयर शिप्स, और वो अपने अपनी शिप्स को लेकर अपने देश की तरफ रवाना हो गए। बट दे डिड नॉट गो वेरी फार अकॉर्डिंग टू प्लान। They did not go very far, वो बहुत दूर नहीं गए। Only one man was left behind to pursue the Trojans to drag the horse into their city। देखिए, प्लान के तहत उन्होंने क्या किया, अपने टेंट्स को जला दिया और वहां से रवाना होने का नाटक किया, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए। उन्होंने क्या किया, जाते समय only one man was left behind, उन्होंने एक व्यक्ति को जो ग्रीक था उसे वहां पर पीछे छोड़ दिया। टू परस्यू द ट्रोजन्स, परस्यू करना मतलब राजी करना, किसी को मनाना। परस्यू द ट्रोजन्स टू ड्रैग द हॉर्स इनटू देयर सिटी, कि किसी भी तरीके से ट्रॉय वासियों को हमें मनाना है, और इस तरीके से मनाना है कि वह उस वुडन हॉर्स को, द ग्रेट वुडन हॉर्स को वह ड्रैग करते हुए अपने राज्य में, अपने सिटी में ले जाए। इस तरीके से प्लान बना था, और प्लान के तहत उन्होंने a man left behind to pursue the Trojans, उन्होंने एक व्यक्ति को वहां छोड़ दिया था। What happened in the next day? The next day the Trojans wake up expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years। क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द ट्रोजन्स वेक अप, एज यूजुअल दे वेक अप, दे वर एक्सपेक्टिंग टू गो आउट एंड फाइट एज दे हैड डन फॉर द पास्ट 10 years। और पिछले 10 सालों से जिस फाइट को कर रहे थे, एज यूजुअल वो उठे और उन्हें लगा कि अभी दिन निकल गया है, चलो फाइट करनी है ग्रीक वासियों के साथ, तो वह अपने शस्त्र अस्त्र लेके बाहर आए। What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls। What delight and surprise, they were totally surprised because they saw, उन्होंने देखा, on the seashore outside the walls, उन्होंने जो नजारा अपने दीवार के बाहर निकल के जो देखा सीशोर पे, जिससे वो सरप्राइज हो गए। इट सीम दैट द लॉन्ग साई वाज ओवर एट लास्ट, ऐसे लग रहा था कि पिछले 10 सालों से जो घेराबंदी हुई थी, ट्रॉय को घेरा गया था ग्रीक सोल्जर्स के द्वारा, वो शायद खत्म हो चुका है। द टेंट्स हैड बीन बर्न, सभी टेंट जल चुके थे। द शोर वाज डिजर्टेड,
और जो किनारा था वह रेगिस्तान की तरह दिख रहा था। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, और चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़ाई थी, द फाइट वाज ओवर, कि वो जो लड़ाई चल रही थी पिछले 10 सालों से वो खत्म हो चुकी है, अभी शायद लड़ाई नहीं होगी। सो द ट्रोजन्स वेयर वेरी डिलाइट, वो बहुत हैप्पी हो चुके थे, बहुत खुश हो चुके थे। इट्स पीस एट लास्ट दे क्राइड, एंड दे स्टार्टेड टू क्राई, दे शाउटेड इट्स पीस एट लास्ट, चलिए अंत में शांति मिली है, मतलब अभी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, ग्रीक तो चले गए हैं, अभी हमें लड़ाई नहीं लड़नी होगी। सो दे क्राइड एंड ओपन वाइड देयर गेट्स। आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा होगा कि वो जो ट्रॉय का वॉल था उसे बहुत बड़े बड़े गेट थे। सो दे ओपन वाइड देयर गेट्स, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। एंड केम आउट इन अ लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन, ग्लैड टू बी फ्री अगेन टू गो वेयर दे प्लीज। देखिए, जैसे उन्होंने देखा कि सभी ग्रीक सोल्जर्स अपनी सेना को लेके चले गए हैं, came out in large numbers on the seashore, वो समंदर के किनारे भारी मात्रा में आए। they were very glad, वो बहुत खुश थे। to be free again to go where they please, वो क्यों खुश थे? क्योंकि वो जहां चाहे वहां जा सकते थे, पहले जैसा उनका अभी रवैया हो गया था। जैसे कोरोना के कारण लोग घर में छिपे हुए थे, बाहर अभी निकलने लगे हैं, और जब सब क्लियर हो जाएगा तो लोग भी बहुत खुश होंगे कि चलो भाई अंत में कोरोना का अंत हुआ और हम लोग अपनी निजी लाइफ जीने लगे। लाइक सेम यहाँ पर भी ट्रॉय वासियों के साथ ऐसे ही हुआ। देन दे सॉ ऑन द सैंड्स द ह्यूज वुडन हॉर्स, देन उन्होंने एक बहुत ही बड़ा वुडन हॉर्स जो ओडेसियस के प्लान के मुताबिक बना था वहां देखा। They gathered around it in astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work. They gathered, उन्होंने से इकट्ठा हुए वहां पर जहां पर हो रहा था वुडन हाउस। In astonishment, they were surprised to see the wooden house. उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा देख के वो बहुत सरप्राइज हुए। For it was indeed a wonderful piece of work, और वो कहने लगे it is a very wonderful piece of work, अरे ये तो बहुत ही सुंदर ऐसा नमूना है कारागिरी का। As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they were wondering, the Trojans were wondering how the horse had been built. वो आश्चर्यचकित हो गए कि इस हॉर्स को कैसे बनाया गया होगा, एंड व्हाई इट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड, और ग्रीक वासी तो चले गए, उन्होंने इस घोड़े को यहाँ क्यों छोड़ा? व्हाई दे लेफ्ट इट बिहाइंड, दे वर थिंकिंग। दे फाउंड अ ग्रीक विथ हिज हैंड्स टाइड टुगेदर लाइंग अंडर इट, और उन्होंने वहां पर एक व्यक्ति को देखा। दे फाउंड अ ग्रीक विथ हिज हैंड्स टाइड टुगेदर, एक ग्रीक व्यक्ति को अपने हाथों को बंधा हुआ ऐसी स्थिति में उन्होंने वहां पे देखा। When the Trojans drag him out, when the Trojans drag him out, तो ट्रोजन वासियों ने उसे बाहर निकाला। The man pretended to be very frightened of them, प्लान के मुताबिक जो उसे बताया गया था वैसे वो यहाँ पर नाटक कर रहा था। He was pretending to frighten of them, वो एक बहाना कर रहा था कि मैं ट्रॉय वासियों को बहुत डर रहा हूँ। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, he pretended. देखिए, तो जब उन्होंने पूछा कि भाई ग्रीक वासी क्यों चले गए और उन्होंने ये जो हॉर्स है इतना बड़ा ये पीछे क्यों छोड़ के गए हैं, he pretended, उसने फिर से बहाना किया। He pretended to tremble, उसने डरने का घबराने का बहाना किया। वेरी मच एंड refused to speak, फर्स्ट ही refused to speak, उसने क्या किया? बोलने को इनकार किया, कुछ बताने को इनकार था। When at last they threatened to kill him, when the Trojans said we will kill you if you didn't speak something, अगर तू कुछ बोलेगा नहीं तो हम तुझे मार देंगे। He spoke and told them this false tale, he spoke, तब जाके वो कुछ बोला। He spoke and told them this false tale, then
इमेजिनेटिव स्टोरी जो ओडेसियस के प्लान के मुताबिक पहले ही तय हुई थी, वही स्टोरी, वही झूठी कहानी उसने ट्रॉय वासियों को बताई। देखिए कहानी क्या है। द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप्स। ही सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमास में आया है और सेड है। द ग्रीक्स आर टायर्ड, जो ग्रीक सोल्जर्स थे, जो सेना थी, बड़े बड़े जो योद्धा थे, वो थक चुके थे फॉर द लॉन्ग वॉर, जो पिछले 10 सालों से लड़ाई चल रही थी जिसके तहत वो थक चुके थे। एंड हैव सेल अवे इन देयर शिप्स, और इसीलिए वह अपने शिप्स लेके अपने देश रवाना हो गए। बट दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयेज होम टू, लेकिन उनका जो देश था यहाँ से बहुत लंबा था और समंदर के रास्ते से उन्हें जाना था। सो दे वर अफ्रेड, वो डर रहे थे कि इतना बड़ा रास्ता समंदर के द्वारा हमें जाना है, तो कुछ अर्पण करके हमें जाना चाहिए। सो दे वर अफ्रेडिंग एंड सो दे हैव मेड दिस हॉर्स एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी। इसलिए that's why they made a horse, they made a big great horse and left it, और उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया as an offering to the god of the sea, इस समुद्र देवता को उन्होंने इस घोड़े को अर्पण कर दिया, मतलब जैसे चढ़ावा चढ़ाते हैं उस टाइप उन्होंने इस घोड़े को समंदर की देवता को अर्पण किया। They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea god, and he again tell a false story. They wanted also to kill me, वो मुझे भी मारना चाहते थे, and offer me as a sacrifice to the sea of God, और मुझे भी मार के इस समंदर की देवता को वह अर्पण करना चाहते थे। But I escaped and hid from them, लेकिन मैं किसी तरीके से वहां से निकल गया and hid from them, और यहाँ आके छिप गया जिसके कारण मैं बच गया। But why did the Greeks make such a huge horse? Some of the Trojans asked. देखिए कुछ ट्रॉय के निवासी थे जो पूछने लगे, they asked, why did the Greek make such a huge horse? ग्रीक वासियों ने इतना बड़ा हॉर्स क्यों बनाया? And the cunning Greek made this reply. वो जो धूर्त, वो जो चालाक ग्रीक वासी था, he made this reply. He says, if they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. He said that, give reply, if they offer a smaller gift, अगर वो बहुत ही छोटा घोड़ा बना के इस समंदर की देवता को अगर ऑफर करते, you might have taken it into your city, तो आप उसे अपने राज्य में लेके चले जाते। Then the luck would have gone to the Trojans, और अगर आप उसे अपने राज्य में लेके जाते तो लक जो था वो आपके साइड आ जाता, आपके लक बदल जाते। Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks, तो जिससे चढ़ावे का जो फायदा था वह ट्रॉय वासियों को मिलता, ग्रीक वासियों को नहीं मिलता अगर आप उस गिफ्ट को अपने राज्य में ले जाते तो। That's why they made it too big to go inside your gates. देखिए उसने कहा कि that's why, इसीलिए they made it too big, इसीलिए उन्होंने इस घोड़े को इतना बड़ा बनाया to go inside your gates, कि वह आपके गेट से भी अंदर ना जा सके, इतना बड़ा उन्होंने इस घोड़े को बनाया। वो चाहते थे कि उन्होंने जो अर्पण किया है उनका लक उन्हीं को मिले, जो कुछ फायदा हो ग्रीकवासी को हो, ट्रॉयवासियों को ना हो। और इस तरीके की ये जो ट्रिक थी, जो प्लान था, वह काम कर गया था। ट्रॉय के निवासी जो थे, ट्रोजन जो थे, they were delighted to hear this, वो बहुत खुश हो गए। The Greeks have gone, they said, अभी ग्रीक वासी तो चले गए हैं। And the walls are no longer necessary, और अभी ये जो हमारी बहुत बड़ी वॉल है जो हमारे राज्य के सेफ्टी के लिए बनी थी, is no longer, and the walls are no longer necessary, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। Let us make a hole in the wall and drag the horse in. चलिए हम क्या करते हैं, let us make a hole in the wall,
इस वॉल में हम एक होल करते हैं एंड ड्रैग द हॉर्स इन, और उसी होल के द्वारा हम इस घोड़े को अपने राज्य में ले जाएंगे, जिसके चलते हमारे लक बदल जाएंगे। इस तरीके की थिंकिंग उनकी चल रही थी। their wise priest warned them not to do so. The wise priest, उनके का एक पुजारी, पुरोहित जिसे कहते हैं, he told them not to do so. आप ऐसा मत करो। It may be a trick that will ruin us. It may be a trick. It will be a big disaster for us. उन्होंने कहा कि इस घोड़े को अपने राज्य में लेके मत चलो। It may be a trick that will ruin us. यह हमारे राज्य के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। He said, means the priest said, you will bring disaster on the city if you break down the walls. देखिए, प्रीस्ट ने कहा, you will bring disaster on the city if you break down the walls. अगर आप वॉल को गिराओगे तो शायद आप हमारे राज्य पर एक बहुत ही बड़ा खतरा लेके आओगे, एक बहुत ही बड़ी आपदा हमारे राज्य पर मंडराएगी, इसलिए आप उस वॉल को मत तोड़ो। But they were so excited that they paid no attention to his words. But the Trojans were very excited. They paid no attention to his words. उन्होंने उस प्रीस्ट के बातों की तरफ, उनके शब्दों की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने ट्रॉय वासियों को कहा था। They ignore to the priest. उन्होंने प्रीस्ट के बातों को इग्नोर किया। They broke down part of their strong wall in order to drag the horse in. In order to drag the horse in, और उस हॉर्स को अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में ले जाने के लिए उन्होंने they broke down the part of their strong wall. उन्होंने अपनी strong wall का कुछ हिस्सा गिरा दिया, जहां से वो घोड़ा उन्होंने अपने राज्य में वो लेके गए। All that day the Trojans feasted and drank and celebrated. और जिस दिन वह उस घोड़े को अपने राज्य में लेके गए, उन्हें पता चल गया था कि अभी ग्रीक तो चले गए हैं, लड़ाई तो अभी लड़नी नहीं है। So all that day, पूरे दिन the Trojans feast and drank and celebrate. पूरे दिन भर उन्होंने क्या किया? पार्टी की, feast, drank, मदिरा का सेवन किया, and celebrate, और इस तरीके से अपनी जीत को उन्होंने सेलिब्रेट किया। After all the celebration, all their celebration, और उनके सेलिब्रेशन के बाद they went to sleep and slept soundly. वो जाके सो गए and slept soundly, और किस तरीके से सोए? गाढ़ी निद्रा में। मतलब कि भाई कोई भी आके, जैसे हम बोलते कि भाई कुंभकर्ण के जैसा सो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही वह सो गए थे। बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी ग्रीक तो चले गए हैं, नो नीड टू फाइट एज यूजुअल, हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेलिब्रेशन हुआ, ऊपर से एक महान घोड़ा जो उनके लक बदलने वाला था उसे भी वह ले आए थे, जिसके कारण वो साउंडली स्लेप्ट हो गए। बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वाज सून फॉलो बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ। बट दैट डे, लेकिन उसी दिन रिजॉइसिंग वाज सून फॉलो, जो हैप्पीनेस था, जो खुशी का माहौल था, वह बहुत ही जल्द, जब रात हुई तो वह एक आतंक में, मृत्यु के तांडव में बदल गया था। The rejoicing was soon followed by a night of terror and death. बिल्कुल ही पूरी तरीके से बदल गया था। The Greek ships had not sailed far. ग्रीक जो शिप्स थी वह बहुत दूर नहीं गई थी। As soon as they were hidden by an island, छिप गए थे, they had lowered their sails. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने सेल्स को, मतलब जो पाल होते हैं, पर्दे होते हैं शिप्स के, उसको नीचे गिरा दिया था। They had lowered their sails and dropped anchor, और उन्होंने, वो जो एंकर होता है, that's called लंगर जिसे कहा जाता है, जो शिप्स को रोकने के लिए एज अ हुक का काम करता है, उसे भी उन्होंने क्या किया? ड्रॉप कर दिया था। एंड वेट फॉर द नाइट, दे वर वेटिंग फॉर द नाइट। जैसे ही रात होगी, हमें कहाँ जाना है? ट्रॉय वासियों को सबक सिखाने के लिए वहां जाना है। सो दे वर हिडन बिहाइंड द आइलैंड
इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल बैक, इन द डार्कनेस, जैसे ही अंधेरा हुआ, द फ्लीट, फ्लीट मतलब द ग्रुप ऑफ शिप्स, वह जो समूह था, वो समूह, जहाजों का समूह, सेल बैक, वो वापस आए, एंड द लीडिंग शिप, और उसमें से जो सबसे आगे वाली शिप थी, लीडिंग शिप, विच वाज एजमेनस, बोर अ रेड लाइट हाई ऑन इट्स मस्ट, सॉरी मैस्ट, और जहां पर एजमेनन था, मतलब एक लीडर था ग्रीक का, जो उसके ऊपर सवार था, बोर रेड लाइट, उन्होंने क्या लगाया था वहां पे, रेड लाइट, एक लाल बत्ती, हाई ऑन इट्स मस्ट, मतलब उन्होंने अपने उस मस्तूल के ऊपर एक रेड लाइट लगा के रखा था, ताकि वो इंडिकेट कर सके कि भाई हम आ रहे हैं, मतलब वो दूर से दिख सके, इसीलिए उन्होंने शायद वो लगाया था। द ग्रीक हु वाज वाचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट crept to the wooden horse and gave the signal, और जैसे ही जो ग्रीक जिसे वो छोड़ के गए थे, उसने देखा, who was watching for the return of the fleet, जब जैसे उसने देखा कि जहाजों का ये समूह हमारा आ रहा है, crept to the wooden horse, वह रेंगते हुए उस wooden horse के पास गया, and gave the signal, और उसने ओडेसियस, मेनालियस और जो ग्रेट हीरो घोड़े के अंदर छिपे हुए थे, उन्हें सिग्नल दिया, he gave the signal. The side of the horse open, तो बंद थी, ओपन हो गई। The Greeks climbed out and opened the gates, घोड़े के अंदर छिपे हुए लोग बाहर आ गए। Greeks climbed out and opened gates, और वॉल को जो बड़े बड़े गेट्स थे, उन सभी गेट को उन्होंने ओपन कर दिया, जो शिप से आए थे, जो छिपे हुए थे लैंड के पीछे, वो सब अंदर घुस सके। The whole Greek army entered the sleeping city, और इस तरीके से पूरी ग्रीक आर्मी वह ट्रॉय सिटी के अंदर एंटर कर गई। इमीडिएटली द ग्रीक set fire to house and towers and palace and began to burn and kill, और जैसे ही as soon as they enter they started to burn and kill the Trojans, और जैसे ही उन्होंने एंटर किया ट्रॉय सिटी के अंदर, they set fire to houses, उन्होंने घरों को जलाना, टावर्स, मीनारों को जलाया, पैलेस को जलाया, जो जहां पर किंग्स रहते थे, एंड बिगन टू बर्न एंड किल, उन्होंने जलाना और मारना शुरू कर दिया। Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. The Troy was filled, Troy पूरी तरीके से फिल हो चुका था, भर गया था, with the sight of leaping flames, मतलब वहां पर आग की ज्वालाएं उछल रही थी, leaping flames, उछलना, leaping करना, उछलना, ज्वालाएं उछल रही थी, and the sound of shouting, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, and the noise of weapons, लड़ाई में जो weapons एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं, उसकी आवाजें आ रही थी, and the cries of weeping women, और औरतों की रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजों से अभी ट्रॉय गूंज रहा था, हर तरफ बस यही शोरगुल और रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। The sleeping Trojans sprang out of their beds, और गाढ़ी निद्रा में सोए ये जो ट्रोजन्स थे, They sprang out of their beds, but they were taken by surprise, और जैसे वो जाग गए, उन्होंने सब सरप्राइज हो गए कि अरे ये क्या हो रहा है, सुबह में तो सब कुछ ठीक था, और अब आज जैसे अटैक, व्हाट वाज हैपन, वो सोच में पड़ गए कि अरे ये क्या हो रहा है। Their enemies were right inside their walls. Their enemies means Trojans were right inside their walls. जो ग्रीक थे, सॉरी, ग्रीक्स वर राइट इनसाइड देयर वॉल, जो ग्रीक थे वह उनके राज्य के अंदर प्रवेश कर चुके थे, उन्होंने उस दीवार को फांद लिया था, अंदर आ चुके थे। एंड मेनी ऑफ द ट्रोजन्स वर किल्ड, और बहुत सारे जो ट्रोजन्स थे उन्हें मारा गया था, बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर एंड सीज देयर वेपन्स, मतलब अपने आर्मर पहनने के पहले ही, जो एक कवच होता है जिसे पहना जाता है लड़ाई के पहले, उसको पहनने, मीन्स पहनना, पुट ऑन देयर आर्मर
उसे पहनने के पहले ही, हाथों में शस्त्र अस्त्र लेने के पहले ही उन्हें मारा गया था। A bright light lit up the night sky as palace and house and temples and towers went up in flames. देखिए, a bright light, एक bright, बहुत ही उजाला, lit up the night sky, उस अंधेरी रात को इस ज्वालाओं ने प्रकाशित कर दिया था। एज पैलेस, जो पैलेस जल रहे थे, हाउसेस, घर जल रहे थे, टेम्पल्स एंड टावर्स वेंट अप इन फ्लेम्स, हर जगह से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी और जिसके कारण ये जो अंधेरी रात थी वह प्रकाशित हो चुकी थी। द ट्रोजन्स फाउट एज वेल एज दे कुड, द ट्रोजन्स फाउट, वो लड़े, ट्रॉय के निवासी लड़े, एज वेल एज दे कुड, जितना हो सका उतना वो लड़े, उतनी उन्होंने कोशिश की, बट इट वाज ऑल इन वेन, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं निकला। इट वाज ऑल इन वेन, इसका कोई फायदा उन्हें नहीं हुआ। ओल्ड किंग प्रियम वाज किल्ड विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स। ओल्ड किंग प्रियम, मतलब प्रियम इज द फादर ऑफ पेरिस। ओल्ड किंग प्रियम वाज किल्ड, प्रियम जो महाराज थे वो भी मारे गए, विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स, उनके सभी बहादुर बच्चों के साथ वो भी मारे गए। हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर्स वेयर कैरीड ऑफ एज अ स्लेव बाय द कॉन्क्यूरर्स। और कॉन्क्यूरर्स मतलब जिन्होंने जीत हासिल की थी, जो विजेता बने थे, उन्होंने हेक्टर्स वाइफ, हेक्टर की वाइफ, एंड हिज ओल्ड मदर, और उनकी माता, एंड सिस्टर, और उनकी बहन, इन बनाया था, गुलाम बना के वह कैरिड ऑफ, वह अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में ले गए। देयर फेट वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस व्हेन द किंग मेनालियस रश्ड थ्रू द सिटी। और इन सब का मतलब हेक्टर की वाइफ, उनकी बूढ़ी माता और उनकी बहन जो थी, इनसे इनका जो लक था वह हेलन से विपरीत था, अपोजिट था। क्या हुआ देखिए, their fate was in contrast to Helen's when King Menelaus rushed through the city. For her, वह अपने वाइफ को सर्च कर रहे थे, was looking for her and found her in her palace, और जैसे उन्होंने उनके पैलेस में उन्हें देखा, she hung her head in shame and sorrow as she faced her former husband. She hung her head, उन्होंने अपने फेस को क्या कर दिया, हंग कर दिया। हंग करना मीन्स झुका देना। She hung her head in shame, shame मतलब लज्जा से, वो लज्जित हो चुकी थी, and sorrow, दुख से और लज्जा से वह अपने पति को फेस नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपने सर को झुका दिया था। Her voice was choked, उनकी आवाज भी मतलब ऐसी चौक हो गई थी और रूंध गई थी, वो बोल नहीं पा रही थी। विथ इमोशन, इमोशन के कारण, भावना प्रधान होने के कारण वह, उनकी वॉइस भी रूंध गई थी। एंड शी कुड नॉट स्पीक, शी वाज अनेबल टू स्पीक, वह अपने पति का सामना करने, उन्हें फेस करने में वह अनेबल थी। बट मेनालियस फॉरगिव हर, लेकिन हर हस्बैंड मेनालियस फॉरगिव हर, उन्होंने अपने वाइफ को माफ कर दिया उनकी गलती के लिए। एंड शी वेंट बैक विथ हिम, एंड शी वेंट बैक, और अपने पति के साथ चली गई। फॉर इट वाज ओनली एफ्रोडाइट हु हैड टर्न हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम एंड हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड। देखिए, और उन्होंने कहा है, फॉर इट वाज ओनली एफ्रोडाइट, वह सिर्फ एफ्रोडाइट ही थी, हु हैड टर्न हर हार्ट, जिन्होंने उनके मन में परिवर्तन किया था, अपने को बदल दिया था। उन्होंने उसे मतलब मेनालियस की वाइफ हेलन के दिल को परिवर्तित किया था, उनके घर से, उनके हस्बैंड के और उनके बच्चों से उन्हें दूर लेके गए थे। शी वाज ओनली द एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट वाज द ग्रीक गॉडेस ऑफ ब्यूटी। वह कौन है? द गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, वह प्यार की और सुंदरता की देवता मानी जाती है ग्रीक में। और उनका कहना है कि शायद इन्हीं के चलते उनका माइंड चेंज हो गया था। When morning came,
nothing was left of the proud rich city that had resist attack for 10 years. When the morning came, और जैसे ही दिन निकला दूसरा दिन, nothing was left, कुछ भी नहीं बचा था, of the proud rich city, वो जो बहुत ही अमीर, बहुत ही सुंदर ऐसी जो सिटी थी, वहां पर कुछ भी नहीं बचा था. Nothing was left of the proud rich city that had resist attack for 10 years, जो पिछले 10 सालों से ग्रीक वासियों का अटैक सह रही थी, उन्हें प्रतिकार कर रही थी, लेकिन उस सिटी का आज अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा था. The rich and proud city was burned in a leaping flame. So in this way, today we learn about the story of the fall of Troy. So this is the first question for you of the second part of the story, the fall of Troy. If you have any doubts, you can ask me. I will try to clear your doubts. Yes, beta. Please ask. सर yes. एस्टोनिशमेंट का अर्थ क्या है? एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्यचकित होना, मीन सरप्राइज होना. एस्टोनिश हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना, जिसे हम कहते हैं कि वह सरप्राइज हो गया. ही वॉज टोटली सरप्राइज. दैट्स कॉल्ड वंडर ऑल्सो. हम वंडर भी कहते हैं. वंडर्ड, सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट. यस बेटा. भूमिका. बोलिए बोलिए. सर. हाँ यस बोलिए. सर आप जो वो पढ़ा रहे थे ना. हाँ हाँ. 1 सेकेंड सर. यस बेटा बोलिए. सर आप जो पहले पढ़ा रहे थे ना, वो सीन थोड़ा फिर से बोलो ना. क्या बेटा, कौन सा सीन? वो जो आता है ना. 1 सेकेंड. मतलब वो फर्स्ट पार्ट वाला. हाँ. फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था? शायद मुझे लगता है 2-3 दिन पहले इस सर ने आपको पढ़ाया होगा फर्स्ट पार्ट. वो मैं उस दिन मेरा फोन खराब हुआ था तो मैं सुन नहीं पाई थी. फर्स्ट पार्ट में क्या है कि एक ट्रॉय जो सिटी है, यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही
एक अच्छी सिटी जो ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। और वह अपने चारों ओर से उसे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एज अ सिक्योर सर बना आवाज के रखा था। अपने शहर को उन्होंने सिक्योर बना के रखा था, जिसके कारण कोई भी शत्रु उनके ऊपर अटैक नहीं करता था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो ट्रॉय के प्रिंस थे जिनका नाम था पेरिस, वो जो पेरिस थे उन्होंने मेनेलियस की वाइफ, मेनेलियस जो थे वो ग्रीक के राजा थे, और उनकी वाइफ जिनका नाम था हेलन, उस हेलन को वह अपने साम्राज्य में लेके आए थे। उन्हें भगा के ले आए थे, उन्हें फुसला के समझा के राजी करके वह ले आए थे, और उन्हीं के कारण वह अपने वाइफ को प्राप्त करना चाहते थे, और जिनके कारण उन्होंने ट्रॉय को घेराबंदी की थी, जो करीब करीब 10 साल तक चली। लेकिन ना उसमें ट्रॉय वासी जीत पाए, ना ही ग्रीक वासी जीत पाए। तो जिसके कारण फिर ट्रॉय को जीतने के लिए और अपने राजा के रानी को वापस ले जाने के लिए ये सब प्लान किया गया, और वह कामयाब हुआ। इज इट क्लियर? So in this way, today we learn about the second part of the story, the fall of Troy. I hope you understood it very clearly. Thank you so much.